Hello everyone, welcome back to my channel. In this series, we are discussing the previous year exams of HTET, and in today's video, we are going for the marathon. In this, we will be discussing the previous year exams from 23 to 18 मीन्स 2018 से लेके 2023 तक के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायो के क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की, एक कंप्लीट वीडियो होगी, एंड आफ्टर दैट लास्ट विल बी ऑफ द फिजिक्स. हम बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एक ही बारी में कंप्लीट बायो के 2018 टू 23 हम सारे डिस्कस करेंगे. तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. So without any further delay, let's start the video. For कि कन्फ्यूजन ना हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे छूट ना जाए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो बायो के क्वेश्चंस हैं उनको येलो से मार्क किया हुआ है और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको पिंक से मैंने हाईलाइट किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. क्वेश्चन 93, बायोलुमिनेसेंस अकर्स इन ciliates, ctenophora porifera and ciliates. So bioluminescence occurs in all the organisms of these three phyla, porifera, ciliates and ctenophora. So option 4 is correct for this question. 93 के लिए option number होगा 4. Next is 95. Lichens are very good pollution indicators. They are made up of prion, alga, fungi, prion, phycobionts, prion and euglenoids. So phytobionts is also called algae and mycobionts is also called the fungi. So lichens are made up of alga plus fungi, where alga provides the food and fungi provides the shelter. So correct option for question 95 is 3. Next question is 97. 97 says Gibson's proboscis monkeys and rhinoceros found in which of the following subregions of Oriental geographical region? कोई समझाने का कुछ भी नहीं है. These organisms are found in the Indo-Malaysian subregions of geographical regions. Next is the chief producer in oceans are dinoflagellates, diatoms, euglenoids and planktons. जो chief producer होते हैं किसी भी oceans में, मतलब जो सबसे ज़्यादा productivity करते हैं, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन फिक्सेशन करते हैं, दैट आर द डायटम्स. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्टार्च. Next question is 101. The wall of the alimentary canal possesses 4 layers. Which of the following is correct sequence from outside to inside? आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि हमारी जो 4 लेयर्स हैं उन 4 लेयर्स में हमसे इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड पूछा. हमसे पूछा आउटसाइड टू इनसाइड. आउटसाइड टू इनसाइड होता है. आउटसाइड में सबसे पहले क्या होगा? दैट इज सिरोसा. आफ्टर दैट मस्कुलरिस. एंड अगर हमें यही दो में ही ऑप्शन दिख गया कि मतलब हमें कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट वहीं से आंसर कर देंगे. अगर फिर भी आपको सारे भी आ रहे हैं, जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा. सो फर्स्ट लेयर इज सिरोसा, देन मस्कुलरिस, सबमिकोसा एंड मिकोसा. मीन्स आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं. अगर यही हमसे इनसाइड टू आउटसाइड पूछा होता देन इट विल बी मिकोसा, सबमिकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा. सो यहाँ पे जो आउटसाइड टू इनसाइड पूछा है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. Next question is 116. 116 says that the scientist who first explained that cell divides and new cells are formed from the pre-existing cells, Fleming, Virchow, Hooke और Schwann. इन्होंने दी थी सेल थ्योरी. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी. रुडोल्फ विर्चू इज द साइंटिस्ट हु सेड that the new cells exist from the pre-existing cells. So correct option for question 116 के लिए option number 2. Next question is 120. 120 क्या कह रहा है? Which one of these phyla possesses closed circulatory system? इनमें से closed circulatory system किसका होगा? Annelids have the closed circulatory system. Arthropoda, mollusca and echinodermata have the open circulatory system. So correct option for question 120 is option number 1. Next is 122. Which of the following set of fishes are edible? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. कौन से इसमें से फिशेज हैं जो एडिबल हैं? कुछ ऐसे फिशेज हैं जो एडिबल नहीं है, कुछ ऐसे फिशेज हैं जो एडिबल है. कैटला, रोहू, हिल्सा, पॉम्फ्रेट.
पहला ही ऑप्शन है जिसके अंदर चारों के चारों जो फिशेज हैं वो एडिबल हैं, बाकी में से कोई ना कोई ऐसे फिश है जो कि एडिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123 सेज व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द बॉडी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से प्रेजेंट होंगे? स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड पियर पैचेस, बोन मैरो एंड थाइमस एंड अपेंडिक्स। बोन मैरो एंड थाइमस आर द ऑर्गन्स दैट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंड, बाकी सारे में जहाँ कहीं पे भी है, लिम्फ नोड्स आर सेकेंडरी, पियर पैचेस आर सेकेंडरी, these are the secondary lymphoid organs. So correct option for 123 is 3, that is bone marrow and thymus. Next is when the glomerulus filtration rate falls, which of the following hormone is released to stimulate glomerulus blood flow? ADH, renin, angiotensin, aldosterone. जब हमारा GFR होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, और जो हमारा ब्लड फिल्टर होके PCT, लूप ऑफ हेनले, देन DCT में पहुंच रहा है, अगर वो डिप डाउन कर जाता है, मतलब वो फ्लो कम हो जाता है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? दैट इज ADH, रेनिन। कौन सा इसमें से हार्मोन रिलीज होगा? तो रेनिन इज द हार्मोन दैट इज रिलीज टू मेंटेन द GFR. Next question is 126. Which of the following species is critically endangered reptile in India? सारे आपको reptiles के ऑप्शन दिए हुए हैं जो critically endangered है। रेड डाटा बुक है, उसके अकॉर्डिंग कौन से critically endangered species हैं? So critically endangered species is घड़ियाल, that is reptiles जिनके अंदर 4 chambered heart भी present होता है। Next question is 129. Which of these इज ए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इनमें से कौन से हैं? ग्लाइसिन, डोपामाइन, एसिटोकोलिन और GBA। तो इन दोनों में से डोपामाइन और एसिटोकोलिन है, वो दोनों ही एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इनमें से आप कौन सा भी ऑप्शन कर देंगे दैट विल बी राइट। अगर दोनों कर देते हैं तो दोनों, अगर एक भी करेंगे तो वो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई हार्ट? ANF, नोरेड्रेनालिन, वेसोप्रेसिन और एड्रेनालिन। जो हमारा हार्ट होता है वो सिर्फ एक ही हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज ANF, एंटीन्यूरेटिक फैक्टर। 133 का ऑप्शन हो जाएगा 1। हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ द ह्यूमन? 8, 14, 22 और 2। हमारे जो ह्यूमन स्कल होता है उसके अंदर 14 बोन्स, फेशियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। Next question is 137. 137 says the process of release of sperm from seminiferous tubule is known as ejaculation, spermatogenesis, spermiogenesis, permeation. Ejaculation is released out of the body of the human being. Spermatogenesis is the process of formation. Spermiogenesis is formation of the sperm. Spermation is the process of release of sperm from seminiferous tubule. So correct option for question number 137 is option number 4. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? हमें इनमें से ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। सदर्न ब्लोटिंग इज डेवलप्ड बाय एल्विन, नदर्न ब्लोटिंग इज टेक्निक इज डेवलप्ड बाय ब्रूम एंड गिलबर्ट, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय टोविन, EM सदर्न प्यूरिफाइड, IgG एंटीबॉडी। सो आउट ऑफ दिस ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 142 इज वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक इज डेवलप्ड बाय टोविन एट ऑल 1979। Next question is 146. 146 says that the offspring produced after asexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होता है? gametes नहीं बनते हैं. That is only morphologically same, only genetically same, morphologically and genetically same. So अगर sperms ही नहीं बनेंगे, माइटोसिस हो रही है, जो एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो रही है, 2 अलग अलग प्रोजेनीज बना रही है, कोई उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, कोई लिंकेज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो जेनेटिकली भी सेम होगी और सिमिलरली मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होगी. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 146 इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज 148. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी. हाउस फ्लाई हैव स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. ठीक है, मतलब जो हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. हाउस फ्लाई हैव द स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. हाउस फ्लाई में हम क्या देखते हैं? हमने कोई भी फूड रखा है, फॉर एग्जांपल शुगर, उसके ऊपर आएगा और उसको सक करना शुरू कर देगा. दैट इज
हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज हनी बी हैज बाइटिंग एंड चुइंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट. हनी बी में बाइटिंग और चुइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, सक कर रहे होते हैं. जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से नेक्टर को सक कर रहे होते हैं, तो उसमें सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज बटरफ्लाई हैव साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. बटरफ्लाईज हैव द साइफनिंग पार्ट, क्योंकि वो भी सक कर रहे होते हैं किसी भी नेक्टर को, किसी भी पोलन ग्रेन्स को सक कर रहे होते हैं. सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. कॉकरोच हैव चूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. नो, कॉकरोचेज हैव द चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट. एक पार्ट ठीक है, दूसरा पार्ट गलत है. सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, we are done with 2023. Next, moving to 2022. Question number 93. Question number 93 says that which of the following is not a xerophytic adaptation to reduce transpiration. कौन सी एक ऐसी, नीचे दी हुई कौन सी एक ऐसी adaptation है that is not a xerophytic adaptation to reduce transpiration. Stems take over function of photosynthesis. कई बार आप जो देखते हैं, जो सेकुलेंट प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है to take the photosynthesis, तो ये भी ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ हेयर इन स्टोमेटल पिट. जो स्टोमेटा पिट होते हैं, जो लीफ प्रेजेंट होती है, उसके स्टोमेटा लीफ होते हैं, उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है. प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस, दैट इज नॉट अ जीरोफिटिक एडेप्टेशन. ये आप बाहर कहीं पे विदाउट नॉन जीरोफिटिक जो प्लांट होंगे उनमें भी मिल सकती है. प्रेजेंस ऑफ ए वैक्सी कोटिंग ऑन लीफ सरफेस, ये ठीक है. केराटिन लेयर इज नॉट द राइट ऑप्शन. केराटिन लेयर नहीं प्रेजेंट होती है. सो ऑप्शन फॉर दिस 93 इज ऑप्शन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग. कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से रोंग है. स्टोन्स एंड आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं. दीज बोथ आर द बेसिक अमीनो एसिड्स. द pH ऑफ हिस्टोन इज लेस देन 7. अभी मैंने बताया है, जो हिस्टोन होता है उसमें लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं और दोनों बेसिक अमीनो एसिड होते हैं. तो बेसिक अमीनो एसिड होंगे तो उनकी pH होगी वो दैट विल बी ग्रेटर देन 7, नॉट लेस देन 7. सो दिस वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. बाकी जो दोनों ऑप्शन होंगे, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, 5 टाइप ऑफ हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन DNA पैकेज में. बाकी सारे ऑप्शन सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97. 97 says which of the following is not a member of kingdom Monera. Blue green alga, mycoplasm, slime molds और methanogens. Methanogens, mycoplasm and blue green alga are the part of the Monera. These are part of the Monera. Only slime molds are the part of the kingdom fungi. So they are not the part of the kingdom Monera. So 93 के लिए correct option होगा option number 3. Next question is 98. 98 said the select the essential part of the flower using the codes given below. नीचे दिए हुए कोड्स हैं, उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, कौन से असेंशियल पार्ट हैं किसी भी फ्लावर के लिए. तो कोई भी फ्लावर होगा उसके लिए असेंशियल पार्ट क्या होते हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. पेटल, peduncle or sepals, these are not the essential parts. These are the whorl for attracting the insect. They colorful, they provide some sort of protection to the pistil and stamen. Only the essential part are the pistil and stamen. So option B and D is present in option number 3. So correct option for 98 will be option number 3. Next question is 101. 101 says that which of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the rest 3 are correct. हमें एक wrong find out करनी है, बाकी सारे करेक्ट है. क्या है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एसिडियन लार्वा, ठीक है, जो एसिडियन लार्वा होते हैं उनके सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है, ये ठीक है. इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रा कोलम इन अडल्ट टोड. वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं. टोड किस में आता है, एम्फीबिया में. एम्फीबिया में आता है तो वर्टिब्रेट्स में आता है. वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो रिप्लेस बाय द वर्टिब्रा कोलम. इट इज नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ट्रेक्साइथिस. Next is it persists throughout life in Amphioxus and extend from the head and tail. ये क्या कह रहा है कि ये Amphioxus में और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी और हेड टू टेल प्रेजेंट होगी, ये भी ठीक है. सो इट इज़ नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन कॉन्ट्रेक्साइथिस. दिस इज द टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे भाई बहुत लंबा टाइम.
ओके 113 says the select the wrong statement from the following, कि हमें नीचे दिए हुए स्टेटमेंट से एक रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल. बहुत बिल्कुल सही है, इसीलिए बार बार बोले जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, क्योंकि वो हमें आयरन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज जिंक इज वन ऑफ द असेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी. ट्रेस असेंशियल एलिमेंट है. ट्रेस मतलब मिनिमम अमाउंट में हमें चाहिए होता है, बट इट इज़ असेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. फैट एंड मिनरल आर नॉट असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर अ बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमंस. बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमंस. फैट को हम फिर भी कई बार कोई हार्ट डिजीज हो गई, कुछ भी हो गया, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट मिनरल्स आर द असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ बैलेंस डाइट. सो रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 3. बाकी फोर्थ स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं. द फूड दैट जनरेट एनर्जी इन द बॉडी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स. ये भी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116. इंटरकैलरी मेरिस्टम आर द प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज. इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो प्राइमरी मेरिस्टम है क्यों? दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट. ठीक है. हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट they contribute to the formation of the primary plant body. They appear early in the life. ये भी correct statement. They contribute for the formation of primary plant body. Both the statement are correct. So option correct for question 116 is option number 1. Next question is 119. Nature of calcium phosphate present into the tooth enamel. Calcium phosphate Ca3PO4. Calcium phosphate coming from the H3PO4, that is a weak acid. वीक एसिड है. दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है. कैल्शियम इज कमिंग फ्रॉम CaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो इसमें जब इसका सोल्ट बन रहा है, इसका सोल्ट कैसा होगा? दैट विल बी बेसिक. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिक. नेक्स्ट इज द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल इज. एंडोथीलियम क्या होती है? ब्लड वेसल्स में जब हमारी कैपिलरीज आ जाती हैं या ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द टिश्यूज अराउंड इट. सो जो ये लाइनिंग होगी, एंडोथीलियम जो होगी, वो मिनिमम थिकनेस की होनी चाहिए. और मिनिमम थिकनेस की किस में होती है? स्क्वेमस एपिथीलियम. क्यूबर्डली भी इससे ज़्यादा होती है, कॉलमनार भी और सीलिएटेड भी. सो स्क्वेमस एपिथीलियम हैज़ द minimum thickness and that is present into the endothelium of the blood vessels. Next is select the incorrect pair. Incorrect pair हमें find out करना है. Food articles and plant part from which it is obtained. Wheat is a fruit, ginger root, turmeric stem and tea leaf. tea हमें लीफ से मिलती है. ठीक है. और उसके बाद में टर्मरिक एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है. फ्रूट, वीट हमें फ्रूट से मिलता है. ये भी ठीक है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज जिंजर. जिंजर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स, दैट इज अगेन अ स्टेम मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123. Consider the following statement in reference to the green manure and select the incorrect statement using the codes given below. हमें ये 3 कोड्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें incorrect statement find out करनी है. Green manure is rich in organic matter and nutrients. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है. ग्रीन मैन्योर इज प्राइमरीली यूज टू एनरिच सॉयल इन फॉस्फोरस. ग्रीन मैन्योर है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? इंश्योर द फॉस्फोरस. नहीं, दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ग्रीन मैन्योर इज यूज टू इज द अनडिकम्पोज प्लांट मटीरियल. ये भी ठीक स्टेटमेंट है. सो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. 123 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. Next is 125. Cells that maintain marrow cells are celled. are cold होना चाहिए था यहाँ पे. जो हमारे मैरो सेल्स होते हैं, जो बोन सेल्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट. एक तो हमें ओस्टियो से ही समझ में आ गया कि यही दोनों ऑप्शंस होंगे. एक होता है ओस्टियोसाइट्स और एक होता है ओस्टियोक्लास्ट. ओस्टियोक्लास्ट आर द bone decomposing cells and osteocytes are bone forming cells. So correct option for question 125 is option number 1. Next is
126 है प्लांट विद जीनोटाइप दिस एंड दिस, जहाँ पे दो अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है 2 raised with power 2, सो हमारे पास में गैमेट्स कितने होंगे 4 टाइप के, इज सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेनी विल बी द फिनोटाइप दिस एंड दिस, जब हमारे पास में 4 ऐसे हैं और जब हम इन चारों की क्रॉसिंग करेंगे विच इज द करेक्ट ऑप्शन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 1/16 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 126। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन का 129वां क्वेश्चन है, स्पीसीज आर द स्टैटिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, असर्शन हमें दिया हुआ है इन्होंने, एंड स्पीशीज डू नॉट चेंज विद द टाइम, ये रीजन है। स्पीशीज आर नॉट द स्टैटिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले तो यही गलत हो गया, एंड स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम, ये भी गलत हो गया, बिकॉज स्पीशीज डू इवॉल्व, एक स्पीशीज दूसरे में इवॉल्व होती है, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज असर्शन एंड रीजन्स आर फॉल्स। नेक्स्ट इज 130 विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स हैव परफोरेशन ऑन देयर सेल वॉल्स, कि मतलब जो कोई सेल है, लिविंग सेल है और उसकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर परफोरेशंस प्रेजेंट है, दैट इज ब्लास्ट सेल, वेसल्स, ट्रेकेड और सीव सेल्स। सीव सेल्स आर द पार्ट ऑफ द फ्लोएम दैट इज अलोंग विद द कंपेनियन सेल्स, और उसमें इस सीव सेल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सीव सेल्स, तो उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें परफोरेशंस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। In an ecosystem, maximum energy is stored at the producer level. Ecosystem term was coined by Odum. Rate at which organic molecules are produced are formed in an autotroph is called the grass primary productivity. ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो भी सनलाइट आ रही है उस सनलाइट को प्रोड्यूसर्स ही होते हैं जो फिक्स करते हैं, दैट इज मैक्सिमम प्रोड्यूसर लेवल पे होती है, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज इकोसिस्टम वाज नॉट कॉइन्ड बाय ओडम, इकोलॉजी वाज द टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय ओडम। Next is 134. 134 says which of the following is wrongly meshed. Wrongly meshed इनमें से क्या है, टेंडेंस, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, समझ में आ गया। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, हमारे उनके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये भी ठीक है। रेड मसल्स है मायोग्लोबिन, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड पिगमेंट, वैसे ही रेड मसल्स में मायोग्लोबिन होता है, ये भी ठीक है। ट्रोपोनिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, ट्रोपोनिन इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन, ट्रोपोनिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, जो हमारी मसल फाइबर्स होते हैं उसमें जो मसल फाइबर के टिप पे प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन, वो एक फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, सो ऑप्शन 4 इज द correct option. Next is 137. Which of the following crop is not suitable for the loamy soil? कौन सी एक क्रॉप है जो लोमी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, दैट इज पैडी। पैडी इज यूजुअली ग्रोन इन is not usually grown in the loamy soil. Next question is 142. Microscopic aquatic organisms lacking locomotory ability and referring with water currents are प्लूस्टोन, प्लैंकटोन, नेक्टोन, सेस्टोन। जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, लोकोमेट्री एबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ पानी की जो करंट्स होते हैं उनके साथ में मूव करते हैं, दीज organisms are called planktons. These are present into aquatic water bodies. They help in the photosynthesis and they are the primary producer in a aquatic ecosystem. Next is which of the following is not चीफली ए रबी क्रॉप। एक रबी क्रॉप कौन सी नहीं है इनमें से, रबी क्रॉप कौन सी नहीं है, ग्राउंडनट, ग्रैम, पी और मस्टर्ड। इन चारों में से कौन सी एक है जो रबी क्रॉप नहीं है। जब आप मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि रबी क्रॉप कौन सी होते हैं, खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, बट मुझे इसको याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं अपने दिमाग में सेट रखती हूँ कि मैं ये देख लेती हूँ कि एक टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है, दूसरे टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है। तो अगर आप इनमें से देखेंगे ग्राउंडनट, पी एंड मस्टर्ड, दीज आर ग्रोन इन विंटर, ये विंटर में प्रेजेंट है। ग्रैम्स आर ग्रोन इन समर सीजन। सो 146 का करेक्ट ऑप्शन होगा, ग्रैम आर ग्रोन हेयर। अभी आप जो
चना है, उसकी मक्का टाट वगैरह खा रहे हैं। ग्राम इज ग्रोन इन विंटर सीजन, ओनली ग्राउंड नट इज ग्रोन इन द समर सीजन। क्योंकि जो हम विंटर्स में जो भी हम खा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाजरा अगर हम कंज्यूम कर रहे होते हैं या मूंगफली हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, दैट आर ग्रोन इन द समर सीजन। और जो हम समर में कंज्यूम कर रहे होते हैं, दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। So gram, pea and mustard are grown in the winter season and groundnut is grown in the summer season. Next question is 148. 148 says the fluid mosaic model of plasma membrane. जो plasma membrane का हमने fluid mosaic model दिया हुआ है, जिसमें जो protein iceberg हैं that are floating in the lipid bilayer, उसके बारे में क्या statement है? The upper layer is non-polar and hydrophilic. Polar layer is hydrophobic. Phospholipids form a bilayer that provides fluidity. Protein form a middle layer. So इनमें से मैंने अभी आपको बोला that is protein icebergs are floating in the phospholipid C, that is C of the phospholipid. So phospholipid is a bilayer, provide the bilayer that provides the fluidity. So correct option for question for 148 is option number 3. नेक्स्ट इज ओके, अलॉन्ग विद दिस वी हैव डन 2022 और अब हमारे हैं 2021 2021 के क्वेश्चंस में। पहला ही क्वेश्चन बायो का है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्क इज बकल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अगर हम मोलस्क की बात करें, मोलस्क में क्या होता है? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 93 इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली बी एंड सी। बकल रेस्पिरेशन नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 197. 97 says which of the following process is responsible for replacing and repairing tissue. मतलब हमें कभी वाउंड हो जाता है, कभी कोई चोट लग गई, या हम वैसे ही अपनी स्किन को कई बार बैठे बैठे, मेरी आदत है कि मैं अपनी स्किन को ना पील ऑफ कर देती हूँ, नियर अबाउट माई नेल्स जो पेयर ऑफ हो जाती है, टीयर ऑफ हो जाती है, वो कैसे रिपेयर होती है? मूवमेंट, मोबिलिटी, सेल डिवीजन, ग्रोथ। ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन साइज, नॉट ग्रोथ वाया द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, जब हमें दिया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 97 इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज 101. व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बर्ड्स का, उनके बारे में क्या इनकरेक्ट है? हार्ट इज 4 चैम्बर, ठीक है। वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, नहीं। साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस आर लैकिंग, ठीक है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2. अगर हम देखेंगे देन आपको कई बारी एक साइनस विनोसिस से और ट्रंकस आर्टेरियोसिस से एक क्वेश्चन आ जाता है दैट साइनस विनोसिस लास्ट किस क्लास में प्रेजेंट होती है और ट्रंकस आर्टेरियोसिस लास्ट किस क्लास में प्रेजेंट होता है? सो साइनस विनोसिस इज लास्टली प्रेजेंट इन रेप्टिलिया एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज लास्टली प्रेजेंट इन एम्फीबिया। दोनों अलग अलग में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट जो मेंबर्स होते हैं, एम्फीबिया में ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता है और साइनस विनोसिस लास्ट होता है रेप्टाइल्स में। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। बाइपोलर मीन्स जो न्यूरॉन्स होते हैं दैट आर ओनली प्रेजेंट इनटू द आई। अब हमारे पास में चारों ही ऑप्शन आई से हैं, सो द बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनटू द रेटिना ऑफ द आई, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दैट आर द बाइपोलर न्यूरॉन्स. Next question is question number 104. 104 says the mineral element present in the chlorophyll molecule, molybdenum, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड आयरन. सो जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम, नॉट मैग्नीज और मोलिब्डेनम. जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है उसमें मैग्नीशियम ही प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन 105. बायोरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. जो हम बायोरेट टेस्ट होते हैं वो हम प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं? प्रोटीन की प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107. 107 क्या कह रहा है? काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल. ठीक है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल. काउ सेल आर बिगर देन ग्रास सेल्स. नो, बोथ द सेल्स आर ऑफ द सेम साइज. तो हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. पहला स्टेटमेंट हमारे पास में गलत हो गया. नेक्स्ट इज काउ सेल्स हैव प्लास्टिड्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स.
जो हमारी काऊ की सेल्स होती हैं उसमें प्लास्टिड और स्मॉल वैक्यूल्स होता है, इनकरेक्ट। ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, ये ठीक है। ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, दीज आर एब्सेंट इन ग्रास प्लांट। ग्रास सेल्स, cow cells have cell membrane and mitochondria, this is correct. So correct option, correct is statement are C and E. C and E is present in option number 3. So correct option for 107 will be option number 3. नेक्स्ट इज 108। 108 में असर्शन रीजन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमें कोड्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट कोड फाइंड आउट करना है। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। पेरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि जो 108 है उसका रीजन सही है टू एक्सप्लेन असर्शन। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। पेरेन्काइमा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है मान लिया, बट पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू इस वजह से मोस्ट अबंडेंट नहीं है। सो दैट्स वाई पेरेन्काइमा सबसे अबंडेंट टिश्यू क्यों है, बिकॉज इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज नॉट सो रिजिड एज कंपेयर टू कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, सो दैट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, डिवाइडिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। सो ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2। 110 क्या कह रहे हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इन बहुत सारे टाइप की होती है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनमें से कंप्लीट मीन्स जो सारे लेवल्स को क्रॉस करे, दैट इज लार्वा, देन उसके बाद में प्यूपा, इससे जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। सिल्वरफिश, लोकस्ट, बेड बग्स एंड मॉस्किटो, सो कंप्लीट लाइफ साइकिल इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट इनटू मॉस्किटो। lungs developed from ectoderm, mesoderm, endoderm और both endoderm and mesoderm. So अगर हम lungs की बात करें then lungs develop from endoderm completely, whole lungs developed from endoderm. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115। 115 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का कौन सा ऑप्शन नहीं है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, पोटैटो हम पढ़ते आ रहे हैं, टर्मरिक का अभी हमने क्वेश्चन किया था और जिसमें दिया हुआ था जिंजर्स आर द रूट, नो दीज आर द स्टेम। टर्मरिक इज अगेन स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, सो क्या नहीं है, दैट इज रूट्स में अवेलेबल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज ग्राउंड नट्स आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117। 117 में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, कोर एंड फ्लेक्स, फ्लेक्स एंड जूट। सो फ्लेक्स एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129. 129 says that इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है रेफरेंस टू कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, उनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा, ठीक है, that is correct. कोलेनकाइमा में भी प्रेजेंट इनटू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इनटू कोलेनकाइमा, ठीक है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ द यंग स्टेम, ये भी ठीक है, बिकॉज जो लीफ होते हैं, विंडी लीफ, विंडी जो एरिया होता है वहाँ कहीं पे जो लीफ की मार्जिन्स होते हैं वहाँ पे भी कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, सो दैट कोई वेयरिंग एंड टीयरिंग ना हो। Its cells are thickened at the corner due to deposition of lignin, that is incorrect. Protoplasm is present into colenenchyma, ये भी ठीक है, so correct option for option number 3, option 129 is option number 3. क्वेश्चन 131 131 का क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस स्ट्रेन। बीटी स्ट्रेन के बारे में क्या करेक्ट है, द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट, द कंसर्न बीटी बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, नो। द बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट। बीटी कॉटन के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। बाकी सारी स्टेटमेंट इनएक्टिव हैं। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस, अगर एक्टिव टॉक्सिन नहीं होता तो वो बैसिलस को ही ना मार देता, दैट इज इनकरेक्ट। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज, नो, दिस डजंट एंटर इनटू द ओवरीज, दैट एंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन एंड क्रिएटिंग द पोर in the intestine of the organism.
Next question is 132. 132 says that the amino acid coded by the start codon of protein synthesis AUG that codes for methionine. कोई कुछ भी मैथ्स कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ 132 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 133 विच इज़ नॉट द करेक्टली मैच्ड. एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिड, कॉस्मिड वेक्टर DNA, राइजोबियम A symbiotic nitrogen fixer. It is not correctly matched because rhizobium is the symbiotic nitrogen fixer that occurs with the leguminous plant. जो भी leguminous plant होते हैं उसकी roots के साथ में symbiotic association बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को benefit करते हैं, and that is a symbiotic nitrogen fixation. Albinism is autosomal recessive gene. ये भी correct statement है. So incorrect statement क्या है, incorrect match क्या है, option number 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136. द करेक्ट मैच इज, हमें करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है. बाकी सारे निथिस क्या है, बोट्राइडल टिश्यू नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्रियोप्टेरस लंग वोम इनकरेक्ट. अर्थवोम सक्कर्स नहीं प्रेजेंट होते. हेट्रोनेरिस सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन 136 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज 140. 140 में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द हायरार्की डिसेंडिंग इन द टेक्सोनॉमिकल रैंक यूजिंग द कोड्स कीप, पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक. ऑर्डर कहाँ पे है, ऑर्डर इज यहाँ पे A आ गया, जीनस B आ गया, क्लास C आ गया, स्पीशीज D आ गया, फैमिली E आ गया. सो करेक्ट इज CAEBD ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट इज 145. द अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है, जो अडेप्ट हो जाता है, दैट इज SNRNA, mRNA, rRNA, tRNA. दिस इज मैसेंजर RNA. दिस वन इज राइबोसोमल RNA जिसके ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं. tRNA इज प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म. सो जो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है ट्रांसलेशन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 SNRNA. सॉरी, that is option number 4. tRNA is present as the adapter molecule in the translation process. SN is not the adapter molecule. next is 2020. लास्ट के 3 रह गए हमारे पास में, 20, 19 और 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91. 91 क्या कह रहा है, इन एन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. गैमेट्स. गैमेट्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है बिकॉज एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. फ्लावर इज डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें कोई भी सिंशियल सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एम्ब्रियो में नहीं प्रेजेंट होंगे. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 91 इज ऑप्शन नंबर 3. Next is taxonomical studies based on DNA are a part of karyotaxonomy, chemotaxonomy, cytotaxonomy and alpha. Karyotaxonomy is where complete chromosome is studied. Chemotaxonomy is studies where DNA as a part is studied. Biofertilizers used in paddy field, Azolla, Bacillus, Rhizobium, Thermus. Thermus is used in PCR. Rhizobium is attached with leguminous plants. Bacillus thuringiensis is used in preparation of bioinsecticidal plants. So correct option for this biofertilizer is Azolla. Next question is 96. 96 says that how many different kind of gametes are produced. Gametes कौन से 2 raised with the power n. n is the number of heterozygous genes present into this that genotype. यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, that is एक, with that will be 2. Option correct for this question is option number 4. Next question is 101. 101 says that the structure and function of life सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई. किसने डिस्कवर किया था, अब थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था. रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट बोयल. सो करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी वो एक कॉर्क में हमने देखी थी, एंड दैट वाज डन बाय द रॉबर्ट हुक.
Next question is 103. 103 says that deficiency of which of the following vitamins cause pernicious anemia. कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से pernicious anemia होता है? That is विटामिन B12, क्योंकि अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो जो हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं होगा. That is both vitamin B12 and iron are absorbed on the same time. 104 says that which of the following plant is डाइकोट. कौन सा प्लांट है जो कि डाइकोट है? दैट इज कांग्रेस ग्रास. पेरेंथीनियम इज द डाइकोट प्लांट. बैम्बो, बनाना, वीट आर द मोनोकोट प्लांट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और फॉल्स. कौन सी ऐसे स्टेटमेंट्स है जो कि फॉल्स हैं? फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोज टिश्यू. फाइब्रोब्लास्ट हैं वो हमारी एडिपोज टिश्यू में फूड को स्टोर करती है. नहीं. फाइब्रोब्लास्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्केम ओवर द हेल्प इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. निसल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन granulocyte. Nissl granules are not found in the granulocyte. They are present into neurons. So this one is also incorrect. Blood platelets are formed by the macrophages. No, blood platelets are not formed of the macrophages. Serum globulin act as an antibody. This one is correct. So option that are incorrect is A, B and C. Option 1. 106 का correct option होगा option number 1. One-horned rhinos is conserved species at. One-horned rhinos are found in the eastern areas of India, that is in Assam और मेघालय टाइप्स. तो वहाँ पे कौन सा हमारा जो नेशनल पार्क है? दैट इज कांजीरंगा नेशनल पार्क. क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन लाइकन्स, एल्गा, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट आर प्लांट होगा. क्लोरोफिल एल्गा में होगा. लाइकन्स में किस किस का एसोसिएशन होता है? फंजाई एंड एल्गा का. तो एल्गा के अंदर क्या होगा? अगेन क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. ओनली फंजाई लैक क्लोरोफिल. 112 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव एनिमल्स विद 2 पेयर ऑफ एंटीना एंड ग्रीन ग्लैंड. 2 पेयर ऑफ एंटीना. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक एंटीना ये है, एक एंटीना ये है, मीन्स वहाँ पे 4 एंटीनास प्रेजेंट होंगे. 4 एंटीनास किस में होते हैं? और ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है क्रस्टेशियंस में. नेक्स्ट इज फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट ऑफ अनियन इज लीव्स. जो हमारा अनियन होता है उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है दैट इज डन इनसाइड द लीव्स. जो एक हम कोई भी नोड जो नोड बनती देख रहे हैं उसके नीचे रूट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये वाला जो स्वोलन पार्ट होता है दैट इज द मॉडिफाइड लीव्स. Next is malaria is caused by the plasmodium. Only all the mosquitoes are the vectors for plasmodium, not the causative agent for malaria. Malaria is caused by the plasmodium. Next question is 115. Which of the following statement about mitochondria is not correct? Mitochondria के लिए कौन सी statement है जो कि सही नहीं है? That is cytochrome C is द ओनली पेरिफेरल मेंबर ऑफ ETS. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसका जो साइटोक्रोम होता है दैट इज ओनली पेरिफेरल मेंबर. ये भी ठीक है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल. ये ठीक है. ATP सिंथेसाइज टुवर्ड्स पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड बाय ATP सिंथेसिस. दैट इज इनकरेक्ट. नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल दैट हैपन इनटू द साइटोप्लाज्म इज करेक्ट. उसके अंदर 2 नेट गेन होते हैं. सो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इज ऑप्शन नंबर 3. If Henle's loop were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected? कौन सी है कि हम उसको expect कर सकते हैं? The urine will be more concentrated, the urine will be more diluted, there will be no urine formation, there will be hardly any change in the quality and quantity of the urine. जब हमारा ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके PCT में आता है, PCT से लूप ऑफ हेनले में जाता है, फिर DCT और फिर कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट्स में जाता है, तो जो हमारे PCT होती है, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, इसमें रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों ही प्रोसेस हो रहे होते हैं. सो अगर हम इसमें प्रोसेस को ओवरऑल कंपेयर करके देखेंगे तो अगर हम यहाँ से लूप ऑफ हेनले को हटा दें, हम डायरेक्ट PCT DCT का कनेक्शन कर दें, तो जो हमारी यूरिन है दैट विल बी मोर डाइल्यूटेड. उसमें जो सोल्स होंगे वो कम होंगे, उसका रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ टोमेटो सेल इज इट्स. कौन सा है जो कि नॉन लिविंग पार्ट है? दैट इज सेल वॉल इज नॉन लिविंग पार्ट.
Negative geotropic roots in mangrove plants are coralloid roots, assimilatory roots, hygroscopic roots और pneumatophore. अगर आप कोई भी मैंग्रोव प्लांट देखेंगे, ये कोई प्लांट है और उसमें क्या होगा, लीव्स ना उस मैंग्रोव प्लांट की बाहर आई हुई होंगी, दैट आर कॉल्ड द pneumatophores. हाइग्रोस्कोपिक आर दैट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एयर. एसिमिलेटरी जो फूड एसिमिलेट करते हैं आते हैं. एंड दीज आर नॉट द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे बहुत लंबा. ओके, यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट. यूरिया कौन एक्सक्रीट कर रहा होता है? दैट इज स्टारफिश, लैंड स्नेल, हाइड्रा. हाइड्रा is the most primitive form of organisms. Hydra is part of land snail, starfish. All of these does not excrete urea. Only the frog excrete urea. Which of the following is the correct gene expression pathway? Correct gene expression pathway होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जीन प्रेजेंट होगा, दैट विल ट्रांसक्राइब टू फॉर्म द DNA, विल फॉर्म द RNA. RNA विल बी ट्रांसलेटेड. पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन और उससे बनेगा प्रोटीन. सो पहले क्या हो रहा है? जीन ट्रांसक्रिप्शन, mRNA विल बी ट्रांसलेटेड टू फॉर्म द प्रोटीन. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 143 इज ऑप्शन नंबर 2. Next question is 147. 147 says which of the following is not true about prokaryotic cells? Prokaryotic cells के लिए क्या ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्या सही नहीं है? Replication of DNA occurs in cytoplasm. प्रोकैरियोट सेल वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली ही हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. सो जो रेप्लिकेशन होगा उनमें, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में चाहे DNA हो चाहे RNA हो, सिंथेटिक मटेरियल हो, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा होगा. ठीक है. सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी ठीक है. Plasmid do not occur in prokaryotic cells. Plasmid do occur in the prokaryotic cells because these are the extracellular DNA molecules. Organic compound can be produced by some of them in organic precursor. This is also correct. Chemophototropism is also present in them. 147 का correct option होगा option number 3. Along with this we have done 2020. We will now start with 2019. 2019 के हम बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन इज 99 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर. आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए क्या यूज नहीं होता है? एस्पार्टेम, सुक्रोलोज, सैकरीन और नोरएथिड्रोन. नोरएथिड्रोन इज नॉट यूज्ड एज द आर्टिफिशियल स्वीटनर. Next is metazoans without tissue grade level of organizations are called. मतलब वो metazoans जिसमें tissue level of grade of organization भी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल टिश्यू किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं? हमारे प्रोटोजोआंस में और पोरिफेरेंस में. पोरिफेरेंस और प्रोटोजोआंस में कोई किसी में भी हमारे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है. दैट इज कॉल्ड द पैराजोआ. प्रोटोजोआ इज नॉट द टर्म. प्रोटोजोआ इज अ part of classification. So parazoa are the organisms. These organization is called parazoa. Next is 103. Ribosomes are formed of DNA, RNA. Ribosomes are formed of DNA and ribosomes are formed of RNA and the protein attached around them. So correct option for 103 के लिए will be option number 2. Next is 106. In which of the following chromatids are clearly visible in meiosis? जो meiosis cycle होती है, meiosis cycle में 2 फेज होते हैं, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 में 2 सेल्स बनते हैं और उसका प्रोफेज होता है. प्रोफेज में 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं. जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पकाइटीन, डाइकानेसिस. उन सब में से जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जैसे हम मेटाफेज में देखते हैं मेटाफेज प्लेट बनती है, वैसे ही मोस्ट क्लियरली विजिबल किस में होते हैं? दीज मोस्ट क्लियरली विजिबल इन डिप्लोटीन फेज ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1. ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ अमीबा टेक्स प्लेस बाय. ऑस्मो रेगुलेशन होता है मीन्स कि हमारे जो इंटरनल एक्सक्रीशन हो रहा होता है वो किसकी हेल्प से हो रहा होता है? फूड वैक्यूल, प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा लिमा इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. जो ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है दैट इज डन बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स.
नेक्स्ट इज 110, द ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड, कौन सा होता है जिसमें स्टेम होता है और वो स्टेम अंडरग्राउंड होता है, दैट इज बनाना। बनाना में जो हमारा स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, ऊपर लीफ ही होते हैं। अगर कभी आप कोई बनाना प्लांट है उसको पील करना शुरू कर दे, जो कि हमारे ग्राउंड से ऊपर है, उसको पील ऑफ करना शुरू कर देंगे, लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, दैट आर ओनली द लीव्स। जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज 114, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट इज द फूड स्टोर ऑर्गन्स, फूड स्टोरेज ऑर्गन्स। अभी हमने क्वेश्चन किया है, एक तो क्या बोलना है कि रूट्स हैं और फूड स्टोरेज ऑर्गन है। अनियन में क्या होता है, फूड स्टोरेज कहाँ हो रहा था, लीफ में। जिंजर, पोटैटो आर द स्टेम मॉडिफिकेशंस, बोथ आर दीज द स्टेम मॉडिफिकेशन। तो हमारे पास में क्या रह गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेंस कोडोन इन यूनिवर्सल कोड। नॉन सेंस कोडोन है जिसके अगेंस्ट कोई भी हमें कोड नहीं मिलता है, दैट इज द स्टॉप कोडोन। वो कौन सी होती हैं, दैट इज UAG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 124, ऑल फंजाइज आर होलोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और एजोट्रॉफ्स। कुछ होते हैं जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ जो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिवाइड कर रहे होते हैं, कुछ कर होते हैं, तो क्या होते हैं, दे आर नेवर ऑटोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स के भी एक्सेप्शंस हैं, होलोट्रॉफ के भी एक्सेप्शन है, बट दे ऑलवेज डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, सो दे आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज 126, 126 के लिए क्या पूछ रहा है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, नन ऑफ द अबो, दीज आर कनेक्टेड विद माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैविंग एनिमल विद द रेडियल सिमेट्री, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसी के अंदर जो रेडियल सिमेट्री को डिवाइड कर देता है। आर्थ्रोपोडा में कैसी होती है, बाइलेटरल, एनेलिडिया में बाइलेटरल, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में बाइलेटरल, सो ओनली एकाइनोडर्म्स हैव द रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट इज 128, 128 says that which of the following is an example of analogy। होमोलॉगी और एनालॉगी दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, हमें एग्जाम्पल बताना है एनालॉगी का। एनालॉगी, हैंड ऑफ मैन एंड लेग ऑफ हॉर्स, टेस्टिस ऑफ मेल एंड ओवरीज इन फीमेल डेवलप फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, माउथ पार्ट ऑफ हनी बी एंड हाउस फ्लाई। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, बाकी सारे एग्जाम्पल हैं होमोलॉगी के, ओनली जब विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल और वुड। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल इज डेवलप्ड व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज deep buried into the soil layers and they ultimately form these fossil fuels. Only wood is not the fossil fuel. Next is placenta in humans is placenta hemochorial, epitheliochorial, syndesmochorial, hemoendothelial। जो प्लेसेंटा होता है हमारे वो किस टाइप के होता है, हेमोकोरियल टाइप का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर, कोई प्लांट है उसका फ्लावर है वो क्लोज ही रह गया, अंदर दोनों उसमें मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो अंदर ही फर्टिलाइज कर रहे होते हैं, दैट इज अ कॉल्ड एज द क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन ए क्लोज्ड प्लांट एंड दैट इज कॉल्ड द क्लिस्टोगैमी। Next is Cranch anatomy is observed in C2, C3, CAM और C4 plant। जो हमारे plants होते हैं उसमें क्या होता है, that is Cranch anatomy is present into the C4 plant। C4 plants में क्या होगा कि जब हमारी जो भी ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड आएगी स्टोमेटा के थ्रू, उसमें पहले वो C4 प्लांट में दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में डेवलप होगी, दैट विल मूव इनटू द मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स में ये जो क्रेंच एनाटॉमी होती है इसमें बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज प्रेजेंट इनटू द C4 प्लांट। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 138 इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय विच पार्ट ऑफ द स्पर्माटीड। स्पर्माटीड के किस पार्ट से एक्रोसोम बनता है, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। सो जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का वो ओवम के अंदर जो उसकी वॉल है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है एंड दैट इज डन वाया द हेल्प ऑफ द गोल्गी बॉडीज।
Next is 143. 143 says the bacteria differ from mycoplasm in having nucleoid plasma membrane 70S ribosome and rigid cell wall. जो बैक्टीरिया होता है और माइक्रोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है? जो माइक्रोप्लाज्म होता है वो सबसे छोटी लिविंग सेल होती हैं, बट उसके सराउंडिंग में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 143 इज ऑप्शन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर? कोयर, जूट, फ्लैक्स, हेम्प. कोयर इज नॉट द बास्ट फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145. अगेन सेम क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड मोड में आ रहा है. कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक. जीनस ए, ऑर्डर बी, क्लास सी, स्पीशीज डी, फैमिली ई, CBEAD. Correct option is option number 3. Next is 147. Phytochrome is related to photophosphorylation, photoperiodism, climacteric effect, photorespiration. So जो phytochromes होते हैं, these are attached with the photoperiodism. That is long day plant and short day plant is regulated by this. नेक्स्ट इज 149. 149 क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज. जो हमारे टेरेडोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होगा? जो स्पोरोफाइट होता है वो भी लॉन्ग लिविंग होता है, वाइल अलोंग विद द गैमेटोफाइट. जो हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, दीज इनमें क्या होता है? जो गैमेटोफाइट होता है वो शॉर्ट लिविंग होता है एंड दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट. जो मतलब गैमेट्स बन रहे होते हैं वो प्लांट के अंदर ही बन रहे होते हैं, उनका सेल्फ कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है. तो ये पूछ रहा है कि जो गैमेटोफाइट है वो डेवलप कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. कि स्पोर्स उसमें नहीं बन रहे. एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोजेनेसिस और जीनिया, उसको बोलते हैं हम एपोस्पोरी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी. नेक्स्ट इज 118. लास्ट में हम आ गए हैं. 2018 का हमने जो पेपर था वो नहीं किया था सेपरेट वीडियो में, इसी वीडियो में मैं डाल रही हूँ. मुझे ये मिल गया, अब तो मैंने इसमें जो भी बायो के क्वेश्चन थे वो इस वाली वीडियो में सोल्व कर रही हूँ. केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. विच वन ऑफ दीज पेयर इज एक्सक्लूसिवली ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स के वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे किसी काम के नहीं है, दैट इज प्रीमोलर, हेल्प इन द डाइजेशन. कॉक्सिया इज कॉमन इन ऑल, तो हमें इसको तो समझने की जरूरत नहीं है. इंटरकोस्टल मसल्स दैट हेल्प इन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन प्रोसेस. फेशियल हेयर इन वुमेन्स ऑल्सो प्रेजेंट देयर फॉर सम रीजंस. सो कॉक्सिक एंड पिना मसल्स आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. इनका हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है. नेक्स्ट इज 95. 95 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ. जो हम फूड होते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं, चिप्स ले रहे होते हैं, कुरकुरे ले रहे होते हैं, उसमें हम क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड? दैट इज एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट इज कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर. ठीक है, जब तक वो बाहर के किसी पोल्यूटेंट के कंट्रोल में कॉन्टेक्ट में ही नहीं आएगा तो वो डिस्कार्ड भी नहीं होगा. यूज ऑफ फ्लश बैग कंटेनिंग इनर्ट गैसेस मतलब उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल हीलियम इस टाइप की कोई गैसेस को फिल कर देते हैं. फ्लक्स बैग यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ किया जाता है. जो आप चिप्स बोलते हैं ना कि उसमें हवा भरी हुई होती है, दैट आर द इनर्ट गैसेस. एडिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो इन तीनों को हम यूज़ करेंगे. 1, 2 and 3 that are present in option number 2. 95 का question number 2 will be the correct option. नेक्स्ट इज द असेंशियल वर्ड्स ऑफ द फ्लावर. अभी हमने ये क्वेश्चन किया था जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं. दैट इज द जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? स्टेमन एंड पिस्टल लिखा हुआ था. कैलिक्स एंड कोरोला आर द वर्ल, दैट इज सेपल्स एंड पेटल दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड कलर फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. सो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज द ऑप्शन C and D. C and D इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 2. 97 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. 101. In frog heart there are cardiac muscles which consist of fibers called.
जो फ्रॉग का हार्ट होता है उसमें कार्डियक मसल्स होते हैं, और उनका वो कार्डियक मसल किस फाइबर के बने हुए होते हैं? दैट आर मेड अप ऑफ द पुर्किंजिन फाइबर्स, दैट आर कॉल्ड द पुर्किंजिन फाइबर्स. नेक्स्ट इज मलेरिया. The product released by the mosquito in the blood that cause chill and fever is called as the. In malaria, the product released by mosquito in the blood that cause chill and fever. जो मस्कीटो होता है वो कुछ रिलीज करता है, वो आके हमारे आरबीसीज में मल्टीप्लाई होते हैं. आरबीसीज में मल्टीप्लाई होके जब ये आरबीसी ब्रस्ट होती है तो वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं. दैट कॉज द चिल्स एंड फीवर्स, दैट इज कॉज बाय द हीमोजोइन is the causative agents for the chill and fever. नेक्स्ट इज 104. 104 क्या कह रहा है? डिफोरेस्टेशन डज नॉट रिजल्ट इन. रिजल्ट किसके लिए नहीं होगा? डिक्रीज इन रेनफॉल्स. अगर डिफोरेस्टेशन हो गया, प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल्स नहीं होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सॉइल इरोजन. जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में सॉइल बाउंड रहती है तो ये भी होगा. इंक्रीज इन वाटर लेवल ग्राउंड. इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर. टेम्परेचर भी अर्थ हो जाएगा, अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्लांट नहीं होंगे, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, रेनफॉल्स नहीं होंगे, जो टेम्परेचर डाउन चला जाता था वो नहीं होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज इन द ग्राउंड लेवल्स. स्पर्माटीड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ. जो स्पर्माटीड है उससे जो स्पर्मेटोजोआ, जो मतलब हमारी एक सेल होती है, और उस सेल से प्रॉपर एक जो सेल जो हमारे जो स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसकी प्रॉपर शेप होती है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस. Next is 107. 107 says that the microtubules from opposite poles of spindle get attached to the kinetochore of sister chromatids during. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं सेंट्रोसोम से, वो जो हमारी जो क्रोमोसोम होते हैं उनके जो काइनेटोकोर्स होते हैं उससे अटैच कहाँ पे होते हैं? दीज अटैच ड्यूरिंग द मेटाफेज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108. Which of the following is not an adaptation of xerophytic plant? xerophytic plant की कौन सी एक adaptation नहीं है? Presence of chlorenchymatous tissue in stem cortex. chlorenchymatous tissue in the cortex ये present होता है because that leads to the photosynthesis. green stem हो जाता है जिसकी वजह से photosynthesis होता है. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इन स्टेम हाइपोडर्मिस. ये भी ठीक है. प्रेजेंस ऑफ वैक्सी लेयर ऑन द एरियल प्लांट पार्ट. जो हमारे लीव्स होते हैं उस पर वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है. प्रेजेंस ऑफ एरियोकाइमेटिक सेल्स इन स्टेम. दैट इज इनकरेक्ट. सो दैट इज नॉट द xerophytic एडेप्टेशन. 108 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. विच ऑफ हाउ मैनी इफेक्टिव कोडोन्स आर देयर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड. जो हम 4 अलग अलग कोड्स होते हैं, AUGC ये होते हैं, इनमें से कितने इफेक्टिव अमीनो एसिड्स के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? सो दैट इज़ 61. क्योंकि जब 4 raised with power 4 कहते हैं तो 64 आता है, बट उन 64 में से 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं. दैट लीड्स टू 61 इफेक्टिव कोडोन्स. नेक्स्ट इज असर्शन रीजन. असर्शन रीजन का क्या कह रहा है? दैट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ बी सोसाइटी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट द ड्रोन्स. ठीक है. जो क्वीन होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं. जो ड्रोन्स होते हैं वो हेप्लॉइड्स होते हैं. ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड पार्थिनोजेनेटिकली. ये भी सही है क्योंकि उसमें मेल जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन नहीं होता है. सो बोथ द आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. नेक्स्ट इज 115. 115 के लिए क्या कह रहा है? द सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट डिस्पर्स्ड वाया द विंड. विंड की वजह से क्या डिस्पर्स नहीं हो रहा है? किसके जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं? दैट इज कैलोट्रोपिस, कोकोनट, कॉटन, कोकोनट और ड्रमस्टिक. ड्रमस्टिक के भी अवेलेबल हैं, कॉटन के भी हो जाते हैं डिस्पर्स, कैलोट्रोपिस के भी डिस्पर्स हो जाते हैं. ओनली कोकोनट इज द प्लांट जिसकी विंड्स की वजह से डिस्पर्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज 131. 131 क्या कह रहा है? असर्शन रीजन है. अगेन टर्माइट्स एंड आंट्स आर द सोशल इंसेक्ट्स. ठीक है, दोनों सोशल इंसेक्ट्स होते हैं. बोथ एस्टेब्लिश फंगस गार्डन इन देयर नेस्ट टू फीड ऑन द फंगस.
टर्माइट्स एंड आंट्स सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, दोनों ही फंगस ग्रो करते हैं देयर इन देयर नेस्ट गार्डन, बट वो इसकी वजह से ये सोशल इंसेक्ट्स नहीं है। तो असर्शन रीजन दोनों सही हैं, बट जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट इज 132 लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू, जो प्लांट बॉडी है उसके लॉस किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड हाइडेथोड। स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, स्टोमेटा एंड हाइडेथोड। सो जो लॉस ऑफ किसी भी सेल के अंदर, जो किसी भी प्लांट के अंदर वाटर लॉस हो रहा होता है, दैट इज डन बाय द स्टोमेटा एंड हाइडेथोड। Next is 133. Phenetic classification is based on observable characteristics of existing organs. Duogram based on DNA characteristics, sexual characteristics, ancestral lineage of existing organisms. So phenetic classification is observable characteristics of existing organism. जो सिर्फ exist अभी कर रहे हैं उन्हीं के basis पे classification होता है. Next is 136. Which of the following animal is unisexual? Unisexual मीन्स दोनों सेक्सेस हैं। एक होता है हर्मेफ्रोडाइट जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जिसके अंदर दोनों सेक्सेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल। और एक होता है जिसमें दो हर्मेफ्रोडाइट आर बाइसेक्सुअल। तो एक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेक्सुअल है दैट इज कॉकरोच। ऑप्शन नंबर 3 इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। जो अर्थवॉर्म होते हैं, लीच होते हैं, टेपवॉर्म होते हैं, दोनों में सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा? माइकोप्लाज्म, अमीबा, बैक्टीरिया, blue green alga. Amoeba is the example of protozoans. So amoeba में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बाकी सारे मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं और मोनेरा में क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज 143. द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज, जो जिम्नोस्पर्म होता है एंडोस्पर्म्स का, उसमें क्या होता है, वो कैसे होता है? दैट इज जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का, वो कैसा होता है, उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है? दैट इज हेप्लोइड। नेक्स्ट इज 145. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर प्लांट्स? कौन सा है एक जो हायर प्लांट्स का एग्जाम्पल है? होर्सटेल प्लांट। होर्सटेल प्लांट लाइकन्स, एल्गा और फंजाई का एल्गा प्लस फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों हेल्पफुल होते हैं एक दूसरे के लिए। पीजिया एफिड्रा। एफिड्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ हायर प्लांट। जो होस्टेल प्लांट होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लोअर प्लांट्स। नेक्स्ट, okay, along with this we have completed the marathon for biology from 2018 to 2023. हमने वो कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम सारे ही आंसर्स को एक्सप्लेन किया कीजिए, तो मैंने इसमें ट्राई किया है। अदरवाइज़ ये अगर एक एक का मैं सारा सब कुछ एक्सप्लेन करती तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती। जिसको एक्सप्लेन करना था मैं उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैंने सभी का आंसर भी बताया है। किसी ने कमेंट किया था कि मैम आंसर बता दीजिए कीजिए, तो मैंने सभी का आंसर बताया है, ट्राई किया है कि मैं मैक्सिमम एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग HTET एग्जाम। थैंक यू सो मच।